let me just start it again. So we are going to talk about this financial sector and trends, structure and turns. This is a reading by Rakesh Mohan. So we were talking about this pre-liberalization. So what we have is the financial sector being divided into three portions. And when we talk about the financial sector, हम सिर्फ banks के बारे में नहीं बात करते हैं. Although banks are a major component in the Indian scenario. But that's not the only concern, especially in the coming year or in the post-liberalization phase. There has been a huge importance of the NBFC sector, the sector of insurance and pension जो अभी बहुत ज़्यादा important है इस particular age में, जिससे हमें funds की बहुत ज़्यादा requirement भी है. Then the sector of as I told you NBFC, then digital currencies का एक major issue अब आना शुरू हो गया है. So this market of financial sector has become insanely more complex now. But we will study that how that development happened. Initially काफी repression था और जो underdeveloped market थी financial markets थी वो majorly banking sector से related ही थी. But only after 1990s it became much more diversified. At the same point of time, when it's a diversified market, the risks associated are also higher. तो crisis और जैसे हमने देखा PMC बैंक के रिगार्डिंग, या पिछले साल अगर आपने पढ़ा 2019 में IL&FS का क्राइसिस या दीवान हाउसिंग का जो क्राइसिस हुआ, तो it becomes much more complex to handle a very large financial sector. So our overall analysis will be divided into three phases. Actually two phases, pre-liberalization and post-liberalization, but the pre-liberalization phase itself can further be divided into two parts, 50s and 60s and 70s and 80s. So 50s and 60s के अगर हम general बात करें, so we are just going to have an overview of the entire reading and then we'll go for a deep dive into the reading per se. So अगर हम 50s और 60s की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर था इसके अंदर इंस्टेबिलिटी थी और साथ में अंडरडेवलप बैंकिंग भी थी, क्योंकि मेजर जो आपके बैंक्स थे वो यूजुअली लालाज लोग जो थे, जैसे अगर आप पुराने बैंक्स देखो तो ये सारे के सारे बिजनेस हाउसेज ने रखे हुए थे, छोटे छोटे मतलब छोटे तो नहीं बट हाँ बिजनेस फैमिली ओन्ड हाउसेस थे, बैंक्स थे, और ये लोग क्रेडिट सबको नहीं देते थे, ओनली क्रेडिट यूज्ड टू बी गिवन टू बिग इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर अपने जान पहचान के लोगों को. सो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था वो काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड था एंड दैट इज व्हाई इंदिरा गांधी का जो पहला अटैक था ऑन द बैंकिंग सेक्टर वाज इन ऑर्डर टू नेशनलाइज द बैंक्स. 1969 के अंदर जो पहला नेशनलाइजेशन हुआ वो इसी के लिए हुआ था. एंड 50s में जो जनरल बैंक्स थे हमारे, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखो तो तीन तरीके के बैंक्स थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जॉइंट स्टॉक बैंक्स एंड फॉरेन ओन्ड बैंक्स. And there was limited access to finance in general for people and there were a lot of bank failures. Apart from that, there were other, in this particular period, if you see, there were other financial institutions as well. Development financial institutions के बारे में बात करेंगे, cooperative banks के अंदर बात करेंगे, post office बहुत important एक sector है for the in the financial sector, especially for saving और rural saving के लिए बहुत ज़्यादा important है. And then 1975 के अंदर these rural development, rural banks also, regional rural banks also came up. So ये आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर था. एंड बट 70s और 80s के अंदर क्या और प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि ऑल्दो यहाँ पर नेशनलाइजेशन हुआ बट साथ में फाइनेंशियल रिग्रेशन और फाइनेंशियल रिप्रेशन भी बहुत ज्यादा शुरू हो गया. वील टॉक अबाउट व्हाट दिस फाइनेंशियल रिप्रेशन इज, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि SLR बहुत ज्यादा था, CRR बहुत ज्यादा था एंड बैंक का जो पैसा था वो काफी ज्यादा लॉकअप हो जाता था. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक टाइम था कि SLR जो था वो 40% था और CRR जो था वो अराउंड 22% था, विच एसेंशियली मीन्स कि अगर बैंक के पास 100 रुपए पड़े हुए हैं तो 100 रुपए में से 40 रुपए तो बैंक SLR के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में ब्लॉक कर दिया, 22 रुपीज उसने ब्लॉक कर दिया RBI के पास, तो उसके पास जो पैसा बचा उसमें से भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए चला जाएगा. सो विच एसेंशियली मीन्स कि आपके पास जो पैसा मार्केट में देने के लिए होगा प्राइवेट सेक्टर को, बहुत लिमिटेड है. सो दिस वॉज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिग्रेशन और फाइनेंशियल रिप्रेशन वाली situation. So therefore this entire thing had to change, and with liberalization, and we'll talk about a couple of committees, एक नरसिम्हा कमिटी रिपोर्ट थी of 1993 and then 1998, जिसकी वजह से बहुत सारे रिफॉर्म आने शुरू हुए एंड आपका जो फाइनेंशियल मार्केट्स था उसका ब्रेथ भी बढ़ा और डेप्थ भी बढ़ा. बट कई जगहों पे अभी भी डेप्थ नहीं है. वील टॉक अबाउट कि कहाँ डेप्थ नहीं है मार्केट के अंदर.
So there was gradual and calibrated financial deepening that happened in this particular period. I'm just giving you a macro structure. Then there was competition in banking now because of private banks allow कर दिए गए थे. पहले अब private banks बहुत limited थे, but still if you see PSBs का अभी भी बहुत ही मेजर शेयर है बैंकिंग इंडस्ट्री में. आज के डेट में भी 70% एसेट्स जो हैं वो प्राइवेट अभी भी प्राइवेट वो पब्लिक सेक्टर के पास है, क्योंकि अभी भी ट्रस्ट है पब्लिक सेक्टर के ऊपर. लोगों को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है. देन यू हैव न्यू इंस्ट्रूमेंट्स कमिंग अप इन दी मनी मार्केट इन द रिसेंट ईयर्स, स्पेशली कोविड के टाइम में तो 3-4 नए इंस्ट्रूमेंट्स और आए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट what we have also seen in this period is that you have higher risk and you have more NPAs. तो NPA का प्रॉब्लम कई बार आया है. In one of the readings, शुरू की readings में I talked about phase 1 of NPA and phase 2 of NPA, especially in the last 10 years. So NPAs का प्रॉब्लम बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आया है और NBFCs में भी आया है. Then you have threats and opportunities of digital currency in this current period. Apart from that, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा उसको भी हमने ओपन अप किया आफ्टर लिबरलाइजेशन. यहाँ तक जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो भी पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज थी इस पीरियड के अंदर भी, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज. बट यहाँ पर अब आपने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर FDI भी लेके आए और उसको ओपन अप भी किया प्राइवेट सेक्टर को, और उसकी वजह से काफी ओपन अप हुआ. जनरल इंश्योरेंस भी काफी ओपन अप हुआ, लाइफ इंश्योरेंस भी ओपन अप हुआ. बट अभी भी जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का वो बहुत कम है. इनफैक्ट I was telling my class about this on their farewell that this is one of the most important things that you should buy from your first salary is a comprehensive health insurance and a term insurance. बट प्रॉब्लम है इसकी ये जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं लिटरेसी है और ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं दैट आर हार्डली टॉट टू अस इन कॉलेजेस और इन जनरल इसके ऊपर डिस्कशन बहुत कम है. So this is an important thing. इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन और सिमिलरली पेंशन फंड्स जो हैं अभी भी वो भी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हैं. इंश्योरेंस फंड्स और पेंशन फंड्स, इफ यू सी डेवलप कंट्रीज, तो ये जो पेंशन फंड होते हैं और इंश्योरेंस फंड होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब जब LIC खुल रहा है तो वो उसके पास खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, अब वो इन्वेस्ट कर सकता है इधर उधर अपना पैसा. तो ये पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस फंड की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली कॉर्पोरेट डेट मार्केट के अंदर, क्योंकि इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं. ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. डेट मार्केट की हम बात करेंगे. डेट मार्केट इंडिया की हर जगह डेट मार्केट दो तरीके की होती है. पब्लिक डेट मार्केट जिसमें डेट किसका ट्रेड होता है, सरकार का डेट, गवर्नमेंट का जो पेपर होता है, गवर्नमेंट का जो सवेरेन डेट है उसका ट्रेड हो रहा है. और दूसरा कॉर्पोरेट डेट, कि कॉर्पोरेट ने कमर्शियल बोरोइंग करी है, कमर्शियल पेपर जिसको हम बोलते हैं. सपोज रिलायंस वॉन्ट्स 1000 करोड़ रुपीज, does not want to raise it from banks, it wants to raise it from the market. So एक तो है कि आप इक्विटी रेज कर लो, दूसरा आप डेट रेज कर लो. डेट के लिए आप कॉर्पोरेट डेट का अपना सर्टिफिकेट ले, कमर्शियल पेपर फ्लोट करो और उसके ऊपर ट्रेड भी हो सकता है. बट कॉर्पोरेट डेट मार्केट जो है इंडिया की वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है और वो सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज के पास है. ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जो बहुत स्टार परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज. इन सारी कंपनीज के पास तो बहुत ज्यादा स्कोप होता है, क्या कहते हैं, आपके पास फंड्स उठाने का कॉर्पोरेट डेट मार्केट से. बट कोई XYZ कंपनी, जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, आईसाक्षर लर्निंग लिमिटेड, सो इसके लिए इसको अगर कॉर्पोरेट डेट मार्केट से अगर इसको पैसा उठाना है तो वो नहीं उठा सकती, क्योंकि वो मार्केट में क्या कहते हैं वो इतनी डेप्थ ही नहीं है कि वो मुझे नाप पाए और फिर मुझे फंड्स दे पाए. सो इस तरीके से यू नीड दीज हेवी प्लेयर्स और बिग शॉट प्लेयर्स टू कम इनटू द डेट मार्केट and make it much more vibrant. Then और उसी में हम देखते हैं कि आज की डेट में अब और भी sources add हो गए हैं. So these are the traditional sources. Now you have more sources in the financial sector. You have alternate investment funds. You have startup capital. You have these accelerator programs now. You have these venture funds, venture capital funds. So अब और भी तरीके के sources आने शुरू हो गए हैं in the financial market. Then we also need to talk about calibrated opening of foreign equity and debt. तो हमें foreign equity and debt के लिए, foreign equity के केस में तो काफी ज्यादा equity allowed है, मतलब बेसिकली हम FDI अलाउ कर देते हैं, बट डेट मार्केट में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं. कोई बाहर का आदमी इंडिया की डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, उस पर अभी भी कैप्स हैं. इक्विटी में धीरे धीरे हमने कैप्स जो है वो काफी ज्यादा रिमूव कर दिए हैं. एंड देन देयर आर रेगुलेटरी इश्यूज.
स्पेशली जब आपका फाइनेंशियल सेक्टर इतना ज़्यादा लार्ज और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं, सहारा जैसे स्कैम्स आ जाते हैं. अगर आपने स्कैम सुना हो उसका, रोज वैली का चिट फंड्स के स्कैम्स आ जाते हैं, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है हमारे यहाँ पर. ठीक है, लोग ज्यादा जानते नहीं हैं कि अच्छा किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट एनबीएफसीज के साथ में कंप्लायंस बहुत मुश्किल है. सो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी गैप्स. And RBI slowly but steadily is filling up all these regulatory gaps and now has come up with new regulations for NBFCs and all other type of differential bank, cooperative banks के ऊपर भी अब काफी RBI वो लेके आ रहा है, अपनी पोजीशन लेके आ रहा है और regulatory norms लेके आ रहा है. So this is the macro overview of the entire reading. Now let's go for a deeper dive. See this reading. It will take a bit of time, but let's finish this up. Now, as I told you that in the story of Indian financial sector is divided into these three phases. The phase 1 of laissez-faire but underdeveloped banking, the phase 2 of financial sector repression, and the phase 3 of calibrated deepening and liberalization. Okay, so all these issues have been, I've just noted them down to you. Now, let's talk about, but जो question majorly होगा वो आपका phase 3, हमारा main focus phase 3 पे होना चाहिए. ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉम 1950 टिल 1990s. सो हमारे पास पहले ये बैंक्स होते थे, बहुत तरीके के बैंक्स होते थे, बट उनका जो एक्सेस था वो लिमिटेड था. उसके बाद अगर हम अभी सिर्फ हम बैंक्स के बारे में बात करें, फिर बाद में हम बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे. सो अगर हम बैंक्स के बारे में फर्स्ट बात करें तो उसके बाद बिकॉज द एक्सेस टू फंड्स वाज वेरी लिमिटेड, इंदिरा गांधी had nationalized 14 banks in 1969 and then 6 more banks in 1980. And apart from that there were financial repression in the sense that यहाँ पर banks के जो investable resources थे उनको बहुत ज़्यादा restrict कर दिया जाता था in form of high SLR and high CRR, जिसकी वजह से crowding out हो जाती थी credit की और for the private sector. पैसा market में उतना ही है और अगर काफ़ी सारा पैसा lockup हो जाएगा तो private sector के पास पैसा बचेगा ही नहीं. That was an issue. Then apart from that administrative interest rates होते थे, interest rates जो होते थे वो freely market determine नहीं होते थे. And then there were these qualitative ceilings कि अच्छा इस sector को इतना पैसा जाएगा, इस sector को इतना पैसा जाएगा. And this was not just the only banks in this particular period. इसके अलावा जो बाकी financial institutions थे वो as I told you DFIs थे, development financial institutions, जो long term credit देते थे और सेक्टर वाइज क्रेडिट देते थे, लॉन्ग टर्म एंड सेक्टर वाइज. टू गिव यू एग्जांपल फॉर दिस, नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो घरों के लिए देता है, आईसीआईसीआई ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, बाद में बैंक कन्वर्ट हो गया. इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर के लिए. एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए. तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ले गए और इनका काम मेजरली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देने का था. ठीक है, और उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स थे एंड रीजनल रूरल बैंक्स थे. कोऑपरेटिव बैंक्स और दोज बैंक्स जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो एज कोऑपरेटिव्स काम करते हैं. एंड रीजनल रूरल बैंक्स की जो ओनरशिप होती है वो हम बताएंगे कि कैसे इसकी ओनरशिप होती है. इसमें ओनरशिप यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्पॉन्सरिंग एक कोई बैंक होता है इसके अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट की भी ओनरशिप होती है. एंड पोस्ट ऑफिसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है स्पेशली फॉर सेविंग. सो 50s एंड 60s के बारे में बात करें तो ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे ये बेसिकली फंड्स कहाँ से रेज करते थे, ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से फेस करते थे और रीफाइनेंस विंडो फ्रॉम आरबीआई करते थे या बजट से लेते थे पैसा. बट अल्टीमेटली ये ज्यादा वाइबल नहीं रहे, इसलिए मेजरली ये जो बैंक्स थे कन्वर्ट हो गए क्या कहते हैं इनटू कमर्शियल बैंक, जैसे एफआईसीआई, आईएफसीआई और जैसे आईडीबीआई और आईसीआईसीआई. तो ये सारे के सारे उसमें कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट हो गए. और नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, सिडबी, ये जो सही रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस बन गए. रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंस को फिर से, मतलब किसी ने 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है, किसी बैंक ने, फिर उसको पैसा चाहिए तो उसने फिर आगे पैसा ले लिया नाबार्ड से या इनसे एनएचबी से या सिडबी से. सो इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग. ना apart from that, what we have seen is in case of cooperative banks there has been dual control. तो इसमें क्या होता था, ना तो आरबीआई का कंप्लीट कंट्रोल था
और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था। तो यहाँ पर रेगुलेटरी आर्बिट्राज हो जाता था। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक था जो 2019 में फेल कर गया क्योंकि इसमें ओवरसाइट आ गई, ठीक है। और क्योंकि स्टेट का भी काफी रोल होता था, इनकी उसके ऊपर आरबीआई का कंप्लीट रोल नहीं होता था, इसलिए पॉलिटिसाइजेशन भी हो जाती थी कि किसको लोन देना है। कई बार सरकार का फोन आ गया किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, तो उसको लोन चला गया। तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रूडेंस होनी चाहिए और जो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए वो कोऑपरेटिव बैंक्स में एट टाइम्स मिसिंग थी, और डेटा भी कई बार शेयर नहीं हो रहा होता था। तो वी डिड नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस just like we have a database for scheduled commercial banks. तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम थी, बट नाउ दैट प्रॉब्लम इज बीइंग सॉर्टेड आउट. RBI has put down strict conditions and brought all these cooperative banks under its oversight. Then then you had these regional rural banks in 1975 ये आना शुरू हुआ. Again guys, these are very important topics. अगर if you are going for UPSC या RBI grade B के दोनों क्या कहते हैं, नॉर्मल वाला, जनरलिस्ट वाला एंड DPR के लिए तो खैर यू नीड मास्टर्स, या तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे कंसेप्ट्स. एंड बैंकिंग के कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन आते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. इन जनरल दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल ऑफ इट. नहीं तो क्रेडिट का एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, कि अर्बन क्रेडिट कैसे जा रहा है, रूरल क्रेडिट कैसे जा रहा है, एंड लास्ट माइल बैंकिंग क्या होती है. देन यू हैव दीज रूरल बैंक्स. और मैंने आपको बताया कि रीजनल रूरल बैंक्स जो है इसमें ओनरशिप किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, और स्पॉन्सरिंग एक पब्लिक सेक्टर बैंक भी होता है. तो यहाँ पर मेन फोकस था कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाए रूरल एरियाज में, फोकस सिर्फ रूरल एरियाज में एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में. बट यहाँ पर भी धीरे धीरे बहुत सारे आरआरबीज अनवाइबल हो गए, और अराउंड 200 आरआरबीज थे एक टाइम पे. आज की डेट में अराउंड 40-50 आरआरबीज रह गए हैं. सो दे हैव आल्सो रिड्यूस्ड. पोस्ट ऑफिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज इसका एक तो रीच बहुत बड़ा है, मैसिव रीच है पोस्ट ऑफिस इंस्टीट्यूशन का. एंड इसके अंदर आप क्रेडिट नहीं ले सकते, बट यहाँ पर पैसा आप सेव करते हो. तो पोस्ट ऑफिस के पास बहुत बहुत बड़ा एक अकाउंट, बहुत बड़ा एक होल्डिंग अकाउंट है. तो एज यू कैन सी देयर आर 33 crore people who have accounts in this. एंड क्योंकि ये डिपॉजिट साइड पे ही काम करता है, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा एक रोल है इसका. देन इफ यू कम टू इंश्योरेंस सेक्टर, एज आई टोल्ड यू कि हम धीरे धीरे सारे सेक्टर्स कवर करेंगे. अगर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारे 1950s में ही हमने इंश्योरेंस का जो बिजनेस था उसको नेशनलाइज कर दिया, और LIC वाज द मोनोलिथ दैट वाज क्रिएटेड लाइफ इंश्योरेंस के लिए. और ओनली इन 90s इट वाज दैट लाइफ इंश्योरेंस वाज ओपन टू अदर सेक्टर्स. बट तब तक सिर्फ क्या कहते हैं आपके पास सिर्फ LIC था, और आज की डेट में भी LIC एक सबसे बड़ा प्लेयर है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. जनरल इंश्योरेंस जो है वो भी नेशनल, अब दो इंश्योरेंस होती है आपकी, ठीक है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, एक होती है जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में आती है जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक्स का इंश्योरेंस हो गया, या कार का इंश्योरेंस हो गया, बाइक का इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया. ये सारी इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज जनरल इंश्योरेंस. तो जनरल इंश्योरेंस भी है. देयर वर 4 जनरल इंश्योरर्स जिनके पास पूरा का पूरा बिजनेस गया हुआ था. तो इंडिया के पास एक LIC था और 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, ठीक है. ये पूरी मोनोपोली बना के बैठे हुए थे 1970s के अंदर. उसके बाद इन सबको, ये देखो मैं कहा था 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, बट उसके बाद धीरे धीरे अपने 1990s के अंदर इनको भी अगेन एक्सप्लोर करना शुरू किया, और आज की डेट में यू हैव a vibrant insurance company in terms of private sector as well. So this is the structure of your financial institutions, banks, non-banks, just go through it. And financial markets का ये structure है. You have money market, you have credit market. So ये दो अलग अलग तरीके हैं फाइनेंशियल सेक्टर को देखने के लिए. यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे हैं, और ये फाइनेंशियल सेक्टर के मार्केट जो है वो कैसे वो है. दोनों अलग अलग है, इंस्टीट्यूशन और मार्केट अलग अलग है, ठीक है. सो मार्केट में यू हैव मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट, बॉन्ड मार्केट. ये मैं बोल रहा था आपको, GSEC एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ये जो मार्केट है ये काफी स्मॉल है. नाउ
लेट्स टॉक अबाउट, अब मैं एज आई वाज टेलिंग यू कि अब हम एक एक सेक्टर पकड़ेंगे एंड उस सेक्टर का एनालिसिस देखेंगे कि 90s के बाद क्या हुआ. ठीक है, अभी तक हमने 90s से पहले तक का, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन इज 90s से पहले तक का एनालिसिस ऑफ ऑल द सेक्टर्स दैट आर अवेलेबल विद अस, एंड वी हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट ईच पर्टिकुलर सेक्टर. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो फॉर अ कंप्लीट डाइसेक्शन इनटू ईच पर्टिकुलर सेक्टर. हम पहले बैंकिंग देखेंगे, फिर नॉन बैंकिंग देखेंगे, फिर इंश्योरेंस देखेंगे, एंड डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चेंजेस आए 90s के बाद और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सो लेट्स कम टू बैंकिंग. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर बैंकिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई. एक गवर्नर थे एम नरसिम्हा कमेटी, और ये नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट अभी आपको अभी तो चलो आप पढ़ रहे हो, but detail में if you are any kind of aspirant for any kind of competitive exam, these two reports are extremely important, so you should download these reports. But do you study them in money and banking? ये money and banking में है, पढ़ाते हैं? Yes sir. So these reports are extremely important for any kind of competitive exam. So अब दो reports थी, एक financial sector को लेके थी 1991 की, और दूसरी थी बैंकिंग सेक्टर को लेके 1998 की. और इसकी इतनी इंपॉर्टेंट कमिटी रिपोर्ट्स थी कि 2021 में भी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हो. 2021-19 में जो मर्जेस हो रहे थे एसबीआई के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के और एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ, ये सब कुछ 1998 में नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट ने ऑलरेडी दे चुके थे. So it was such a significant reform, or such significant reforms were outlined in this particular report, that its relevance was even 20 years, 25 years after its final report was published. So पहली जो रिपोर्ट थी फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, वो थी कि किस तरीके से पहले तो आप फाइनेंशियल सेक्टर को फ्री करो. सो क्योंकि हमें पता था कि फाइनेंशियल सेक्टर वाज कंप्लीटली रिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हाई एसएलआर और हाई सीआरआर. सबसे पहले उन्होंने कहा कि बॉस एसएलआर को उठा के 21% करो, सीआरआर को आप कम करो. सो आपने सबसे पहले यही किया, रिडक्शन, और ये जो आपने सीआरआर और एसएलआर है उसको कम करना शुरू किया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट था जिसमें आप फिक्स कर देते कि इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, वो खत्म करना शुरू किया. सो यू वर मेजरली प्राइवेट सेक्टर. अब आप क्या कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप कर रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर को बोल रहे हो कि हाँ बॉस आप इंडिया में आके इन्वेस्ट, और या प्राइवेट सेक्टर को बोल रहे हो कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आ जाओ. तो बैंकिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर तभी आएगा जब प्रॉफिटेबल होगा. सो यू आर ट्राइंग टू मेक प्राइवेट बैंकिंग प्रॉफिटेबल, नहीं तो बैंकिंग वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इससे पहले. सो दिस वाज वन थिंग. देन जो 1998 की कमिटी की रिपोर्ट थी, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज उसने रेगुलेशंस नए इंट्रोड्यूस करे. You might have heard about these Basel norms, money and banking के अंदर, Basel 1, Basel 2, Basel 3. तो ये जो Basel norms हैं जिसमें क्रेडिट एडिक्वेसी रेशो के बारे में आप बात करते हो, वो सारी रेशोज और प्रूडेंशियल बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सारे जो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये रहा, सुपरविजन कैसा होना चाहिए, रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से आया. सो दिस वाज द अदर आइडिया. And just to give you an illustration about this, कि ये जो gradual reduction of CRR from 15% to 4% and SLR from 40% to 21%, ये इसी reports की वजह से धीरे धीरे हमने reduce करना शुरू कर दिया. So you don't need to read all of this. This is सिर्फ आपको देखना है तो देख लो कि देखो 1991 में बैंक रेट देखो 11% है, CRR 15% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 38 या 40% मान लो, और अगर आप आज की 2016 के देखो तो ये 21% है, और 21.5 ये 7% है, और ये 4% है. तो विच एसेंशली शोज कि देयर वाज दिस फाइनेंशियल रिप्रेशन वाज देयर, वो खत्म हो गया. देन उसके अलावा मार्केट को लिक्विड बनाने के लिए, अब मार्केट में एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे पाए, ठीक है, मार्केट में फ्लोज जो है आराम से चल पाए, उसके लिए मार्केट में न्यू इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड. तो यहां पर अब आपका आ जाता है इंटरबैंक रेट और रेपो रेट. तो वो सारी चीजें आ गई. और रेपो रेट क्यों होता था, तो दिस इज समथिंग फ्रॉम योर मनी एंड बैंकिंग, इसी सेमेस्टर में है ना गाइस? Yes. सो if you read the last unit, हाँ, if you read the last transmission of monetary policy, अगर आप लास्ट यूनिट 5 पढ़ोगे तो उसके अंदर आप यही देखोगे
there is something called, I mean, I've read it 3-4 years ago, but I think I still recall it. Monetary policy goals होते हैं, then उसके बाद instruments होते हैं, then you have intermediate goals, then you have operating targets, and you have final goal. यही होता है guys? किसी को याद है? ये किसी ने पढ़ा है? Instruments यहाँ से शुरू होता है actually. Instrument, intermediate goal, operating target, final goal. Yes, no guys. किसी ने तो पढ़ा होगा ये. मनी एंड बैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है ये. सो सच है, मतलब वैसे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन रीडिंग एज वेल. एन जादव की है शायद. सो दिस पर्टिकुलर रीडिंग टॉक्स अबाउट कि कैसे हम टारगेट करते हैं. तो यूजुअली गवर्नमेंट के पास क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में, सपोज इट्स समथिंग लाइक ड्राइविंग अ कार. तो आपके पास कार के पास क्या है, दिस इज, टेक एग्जाम्पल की दिस इज योर कॉलेज, कि आपको कॉलेज पहुंचना है, ठीक है, बट आपको रास्ता नहीं पता, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आपके हाथ में सिर्फ एक गाड़ी है. तो दिस इज योर स्टीयरिंग एंड योर ब्रेक्स, सिर्फ यही आपके पास है. अब these are your guiding tools to achieve. Just because you have the steering and the brakes and the accelerator with you does not mean that you can reach college. So for this you need certain kind of guidance principle कि अच्छा रास्ते में कोई पर्टिकुलर कोई एक वो आएगा, से आपको पता चल गया कि अच्छा एक मार्केट आएगी और उस मार्केट से राइट लेना है, फिर उसके बाद एक से टेम्पल आएगा और टेम्पल से लेफ्ट होना है. So there is no direct relationship between instrument and policy and the policy goal. तो उसके लिए we need these kinds of intermediate goals and operating targets जिसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँच पाए. तो उस केस में भी यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास सपोज रेपो रेट है. अब रेपो रेट इंस्ट्रूमेंट क्यों है? इंस्ट्रूमेंट इसलिए क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली इन दी हैंड्स ऑफ आरबीआई या बैंक, सेंट्रल बैंक होता है पॉलिसी रेट. तो आरबीआई डायरेक्टली इसको चेंज कर सकता है, और चेंज करके what RBI tries to do is वो अपना WACR को चेंज करने की कोशिश करता है. सुना है ये टर्म किसी ने? वेटेड एवरेज कॉल रेट. ये क्या होता है? व्हाट इज दिस वेटेड एवरेज कॉल रेट? ये आपका रेपो रेट है, ये आपका रिवर्स रेपो रेट है. ये वो रेट होता है जिसपे क्या कहते हैं, आरबीआई जो है वो बैंक्स को लेंड करता है, और ये वो रेट है जिसपे बैंक्स जो है उसके पास जो एक्सेस फंड्स है वो आरबीआई के पास रख सकता है. दिस इज सिर्फ 4% एंड दिस इज 3.35%. तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए होगा, ठीक है, अगर मैं एक बैंक हूँ HDFC बैंक और मुझे से 50 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्या मैं आइडल सिचुएशन में क्या मैं 4% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि 50 करोड़ रुपए अगर 4% पे चाहिए तो मुझे आरबीआई से मिल जाएगा. सिमिलरली मुझे 4 करोड़ रुपए मेरे पास 50 करोड़ रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है, क्या मैं इस रेट से कम लूंगा? नहीं लूंगा बिल्कुल भी. तो this is the kind of floor rate and this is kind of ceiling rate. इसके ऊपर एक और रेट होता है which is called as MSF, marginal standing facility. ठीक है, अगर इससे भी कुछ, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड बोरो नहीं कर सकते हो आप, उससे ज्यादा अगर आपको कुछ बोरो करना है तो आप MSF से बोरो करोगे. तो जो आपका वेटेड एवरेज कॉल रेट होता है, मतलब वेटेड एवरेज इसलिए क्योंकि हर बैंक दूसरे बैंक से एक अलग रेट पे कोट कर रहा होगा, जरूरी नहीं कि एक रेट चल रहा है, बट जो एवरेज कॉल रेट है, इंटर बैंक कॉल रेट, एक बैंक दूसरे बैंक को जो रेट दे रहा है वो इस विंडो के बीच में रहता है. दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉल रेट. तो रेपो रेट से रेपो रेट, अब ये विंडो है, अब अगर ये विंडो ऊपर जा रही है तो ये वेटेड एवरेज कॉल रेट भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर ये वाली विंडो जाएगी तो रिवर्स रेपो रेट भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैलिब्रेटेड है. ठीक है, अगर रेपो रेट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो उतने ही डिस्टेंस से ये भी नीचे जा रहा है. तो अगर रेपो रेट आप ऊपर करोगे तो वेटेड एवरेज कॉल रेट ऊपर चला जाएगा. वेटेड एवरेज कॉल रेट ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली बढ़ रहे हैं. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, जो फाइनल इंटरेस्ट रेट जो जिस रेट पे बैंक आगे कस्टमर्स को चार्ज करेगा वो बढ़ जाएगा. अगर वो बढ़ जाएगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड और जनरल डिमांड कम हो जाएगी. सो उससे आप इन्फ्लेशन टारगेट कर सकते हो. तो आई जस्ट टॉट यू व्हाट इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस तरीके से हो रही होती है, क्या क्या एटलीस्ट टेक्निक होती है. सो यहाँ पर देखो वही है that what had happened in this particular framework was repo was announced as policy rate and हम liquidity manage करते थे day to day पे. तो ये जो repo rate और reverse repo rate की window है इसको हम liquidity adjustment facility बोलते हैं, LAF corridor या LAF window भी बोलते हैं. और इसका एम होता था कि जो आपका ऑपरेटिंग टारगेट है, ये आपने मनी एंड बैंकिंग को पढ़ना है, या अगर पढ़ा नहीं है तो प्लीज मेक श्योर यू रीड इट.
वेटेड एवरेज कॉल रेट को इसके अराउंड रखना है, रेपो और रिवर्स। ये आपका ऑपरेटिंग टारगेट था जिसके थ्रू आप बाकी टारगेट्स अचीव करते हैं। ठीक है, आपको लिखा है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड कॉल रेट। तो यूजुअली आपको इस रेंज के अंदर मिल जाएगी, एक्सेप्ट फॉर से जैसे अब ये वाला पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई क्राइसिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसलिए काफी ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। देन उसके बाद 1990s के अंदर नए बैंक्स लेके आए और फिर उसके बाद नए मेजर्स लेके आए कि आपका क्रेडिट का जो कल्चर है वो भी चेंज हो, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट कल्चर को लेके भी अब प्राइवेट बैंक आ रहे हैं और अब ये न्यू एज के अंदर आप देखना चाहते हो कि लोग अगर पैसा वापस नहीं कर रहे तो आप रिकवरी कैसे करोगे। ये जो एनपीए का प्रॉब्लम बन रहा था, ये एक मेजर इशू बन रहा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। मार्केट बढ़ रही थी, लोग अगर पैसा वापस नहीं करेंगे तो बैंक्स कैसे चलेंगे। तो उसके लिए क्रेडिटर्स राइट्स के लिए सबसे पहले शुरू हुई है सरफेजी का एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट, इंटरेस्ट एक्ट क्या कहता है। अब बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ बैंकर बिफोर कमिंग इन टू दिस पर्टिकुलर जॉब, दैट वॉज लॉन्ग टाइम बैक, बट ये जो एक्ट है इसका भी काफी ज्यादा मिसयूज होता है। ठीक है, इसके अंदर बैंक्स के पास पावर होती है कि वो उठा के आपका, अगर आप लोन वापस नहीं कर रहे हो तो आपका एसेट को सिक्योरिटाइज करके, पहले तो अटैच करके सिक्योरिटाइज करके उसको बेच सकता है, बट किस रेट पे बेच रहा है यहाँ पर कई बार करप्शन आ जाता है। ठीक है, एंड आई नो कि कहाँ पर यहाँ पर बैंक्स के अंदर काफी क्या कहते हैं सेटिंग हो जाती थी, जिसके अंदर आपका जो एसेट्स हैं सपोज वो 100 करोड़ के वर्थ है, बट आपको किसी को फेवर करना है तो आपने उसकी बिडिंग ही सिर्फ 80 करोड़ में खत्म करा दी और उसमें 20 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए रख लिया। तो यहाँ पर भी सरफेसी के अंदर भी अब जहां पर भी पैसा होगा वहां करप्शन हो सकता है, बट अल्टीमेटली the architecture that was created in this, it was not a perfect architecture, but the architecture that was created was कि एक सरफेसी एक्ट होगा, साथ में डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आएंगे, डीआरटीज बोलते हैं हम इनको, जस्ट सेकंड गाइस। सो this was डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, डीआरटीज आ गए, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है जिसको बेसिकली हम बैड बैंक बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि सपोज एक बैंक है जिसको 100 करोड़ रुपए एक कॉर्पोरेट वापस नहीं कर रहा, तो बैंक क्या कहेगा कि यार ये तो मेरा काम तो लेंडिंग और इस चीज का, मेरा काम है रिकवरी का थोड़ी ना। सो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी, वो इस 100 करोड़ का जो लोन है उसको खरीद लेगी। अल्टीमेटली तो ये मेरा एसेट है, बट ये एसेट वेस्टफुल जा रहा है, क्योंकि अगर बैंक किसी को लोन देता तो इट कम्स ऑन द एसेट साइड। Now this asset is becoming NPA, non-performing asset. So instead of trying to recover 100 crore rupees from the defaulter, I sell this particular asset for 40 crore rupees to this asset reconstruction company. अब ये asset reconstruction company की headache है कि ये 40 करोड़ रुपए से अपना कैसे 50 करोड़ रुपए रिकवर करे या 60 करोड़ रुपए रिकवर करे, वो उसका headache है। So essentially it's a bad bank. बट अब हमने उसका आर्किटेक्चर थोड़ा चेंज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बैड बैंक बना दिया, जो बाकी सारे बैंक से सारे उसके क्या कहते हैं ये एनपीएस खरीद रहा है, एंड बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उसको क्लियर अप कर रहा है। देखिए अल्टीमेटली जब आपके पास एनपीए नहीं होगा तो आपकी बैलेंस शीट्स क्लियर होंगी, तो आप और लेंड कर पाओगे। सो दैट इज वेयर देयर वर 2 साइकिल्स इन इंडिया इन द लास्ट डेकेड वेयर एनपीए क्रिएटेड अ हैवॉक इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, पहले सिर्फ बैंकिंग में, फिर उसके बाद एनबीएफसीज में, जिसकी वजह से बैंक्स लेंड नहीं कर पा रहे थे। ऑलरेडी उनके एसेट्स जो हैं वो एनपीए कन्वर्ट हो रहे हैं, एक वो स्कैर्ड हैं और दूसरा उनके पास एबिलिटी ही नहीं है और लेंड करने की, क्योंकि एसेट्स उनके ब्लॉक्ड हैं। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस अनक्लॉगिंग ऑफ एसेट्स, अब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो दे कैन लेंड मोर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ेगी और फिर जीडीपी बढ़ेगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। Then apart from that you have this credit information bureaus that was also introduced, but अभी भी इंडिया में इतना strong नहीं है। You might have heard about this thing called CIBIL score, जिसमें आपको स्कोर मिलता है आउट ऑफ आई थिंक 800 या 900 का स्कोर है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर ये मतलब आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके बेसिस पे आपकी वो डिसाइड होगी कि आप कितना सेफ हो या कितना अनसेफ हो। एंड लास्टली यू हैव दिस IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो प्रॉमिस करता है कि 270 डेज के अंदर हम कोई भी आपकी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होगी उसको हम रिजॉल्व कर देंगे।
नहीं तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज कई कई साल चलती थी और ऐसा हो जाता था कि कई बार की एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती थी। सपोज सपोज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने आपसे पैसा लिया हुआ है और उसने अपनी फैक्ट्री प्लेज करी हुई है, बट अगर वो इंडस्ट्री अगर से 10 साल बंद ही पड़ी रह गई तो उसके उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अंदर जो मशीन्स हैं, वो तो सारी बेकार हो गई हैं। सो दैट मीन्स जो खरीदने वाला होगा वो आपको बिल्कुल 100 करोड़ की चीज का आपको सिर्फ 2 करोड़ रुपए देगा। दैट मीन्स 98 करोड़ रुपीज का लॉस, विच बेसिकली विच कैन बी कट डाउन अगर आप अपना ये सारा इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जल्दी हैसन अप। So which was the idea behind this insolvency and bankruptcy code? And then apart from that, for real time connectivity, you have this NEFT and RTGS system, जिसकी वजह से the banking system has improved. And now after in the last 3-4 years, you have this digital platforms that have come up. You have payment banks. हर institution अपना payment bank निकाल के ले आया है. You have these small finance banks. You have now these crypto banks, ये भी आ गए हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है, ऐप बेस्ड एप्स आ गई है, बहुत सारी बैंक्स ने अपना एप्स अच्छा बना लिया है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स दैट हैज अ वंडरफुल ऐप इज ICICI। इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो these are again I mean इनके इन प्राइवेट बैंक्स के पास कोई लेगेसी इशू नहीं होता, एंड देन दे आर वेरी फुटलूज इन दी सेंस कि उनको दिक्कत नहीं होती कि नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, एज कम्पेयर टू जो सरकारी बैंक। आप कॉलेज में अपने कॉलेज में जाओ, आपके हर कॉलेज में, आई कैन बेट ऑन माई लिम्स कि किसी भी कॉलेज में प्राइवेट बैंक नहीं होगा। किसी में है, आई एम श्योर किसी में नहीं होगा, सबके अंदर सरकारी बैंक्स होंगे, सारे के सारे सरकारी बैंक्स होंगे, क्योंकि सरकार को सरकार के साथ ही मजा आता है ढीले तरीके से काम। ठीक है, तो एंड बिकॉज आई हैव अ 2 year एक्सपीरियंस विद दीज सरकारी बैंक्स, तो आई नो कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनका सिर्फ सोल्यूशन एक ही है, इनको बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे दो। देन but that's on a personal note. Now coming to selected outcomes, that what has happened because of these influx of private banks into the banking area, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि अच्छा हमारा क्रेडिट टू GDP, सो व्हाट हैज बीन हमारे एग्रीगेट डिपॉजिट्स और एग्रीगेट क्रेडिट, ये दोनों के दोनों इंक्रीज हुए हैं, एंड स्पेशली because of these private banks। अब प्राइवेट बैंक्स जो है आपको नई चीजें ऑफर कर सकते हैं, आपके घर आके करेंगे। I was taking a lecture on CUET today, and then a parent called me up and told me कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, and it started from White Hat Junior, but this has now gone to another level. Byju's is now come up with these tuition centers। किसी ने देखे हैं? दिल्ली में ट्यूशन सेंटर्स खुलने शुरू हो गए बायजूस के नाम पे। Has anyone seen? अब नो आकाश नहीं, अपने प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सिर्फ कोचिंग के नाम से ही इंस्टीट्यूशंस खुले हैं। somehow they have got hands on data। अब ना वो कहाँ से डेटा आ रहा है, कैसे डेटा आ रहा है इनके पास। they are sending people to homes of children, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक का है शायद से वो उनका कोचिंग सेंटर जिनको ये बोलते हैं। उनको जाके ये घर पे जाके बच्चों को टेस्ट देते हैं, दे स्केयर दी पेरेंट्स एंड देन आस्क देम कि अच्छा आप अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो हम आपको इजी फाइनेंस देते हैं। और दे आर कोर्सिंग टीचर्स और दे कोर्सिंग पेरेंट्स टू जॉइन देयर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज अ न्यू ट्रेंड। अब ये क्या है, ये फाइनेंस ही तो है, ये कहाँ से आया? क्योंकि देर आर फाइनेंशियल पार्टनर्स, देर आर स्पेसिफिक न्यू स्टार्टअप्स। आई नो एटलीस्ट 10 स्टार्टअप्स विच आर इन दी सेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में पैसा देते हैं और एजुकेशन के अंदर आपको इजी मनी देना चाहते हैं, बेसिकली इंटरेस्ट फ्री या इजी EMI पॉलिसीज के थ्रू। और इनका कोलैबोरेशन बायजूस जैसी कंपनीज के साथ है, ग्रेट लर्निंग जैसी कंपनीज के साथ है, और इन सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कि कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि दीज बैंक्स आर रियली एग्रेसिव नाउ। ठीक है, आज से पहले नहीं होता था। आप जाओ, आप आज की डेट में SBI पे जाओ, आपसे 50,000 सवाल पूछ लेंगे कोई भी आप लोन लेना चाहोगे, बट आप प्राइवेट सेक्टर के पास लाओ, इमीडिएटली आपको दे देंगे। इन दैट सेंस यू माइट सी बैंक्स विच आर वेरी डिफरेंशियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक का NPA इसलिए कम है क्योंकि इट हैज अ वेरी प्रूडेंशियल नॉर्म। वो ऐसा नहीं लोन नहीं देता कि भाई किसी को भी लोन दे दो। तो these again, but at the end of the day what has happened after 1991, see यहाँ पर देखो आपको क्लियर ट्रेंड दिखाई देना शुरू होगा
कि एकदम से आपका क्रेडिट, बैंक डिपॉजिट एंड बैंक क्रेडिट जो है वो एकदम से इंक्रीज हुआ है. सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर दैट हैज कम अप. ईएमआई पॉलिसीज हैं आजकल, एक नई चीज आई है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट बाय नाउ पे लेटर. सुना है? बाय नाउ पे लेटर. ये नई चीजें आनी शुरू हो गई हैं जिसके अंदर विच इज अगेन ओपनड अप ह्यूज कंजम्पशन. तो अब क्रेडिट जैसी चीजें आनी शुरू हो गई हैं बिकॉज पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड. जैसे आप जॉब में आओगे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यार क्रेडिट कार्ड की जरूरत है. एंड देन क्रेडिट कार्ड का पूरा बिजनेस मॉडल ही एक ही चीज पे चलता है. ठीक है, क्रेडिट कार्ड they want people who do not, उनके लिए क्या, उनका when I was doing a lot of projects in AI, तो मशीन लर्निंग में हम ये बेसिकली देखते हैं कि किसको टारगेट करना है. क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है जो अपनी इनकम से ज्यादा लोन वो ले और टाइमली पैसा ना दे. दिस इज द पर्सन हु इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, और जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री में कैश काउ, जो अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड कर रहा है और जो टाइमली पैसा नहीं दे सकता, जो 28 दिन के अंदर जो उसका साइकिल है उसमें पैसा नहीं दे सकता. दैट इज द मेन गोल. और सी बिकॉज दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्रेड ने आके इसको सॉल्व कर दिया. सो दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस फाइनेंशियल इंडस्ट्री. So which all shows you one thing, that your entire industry is now becoming extremely commercial, and it is kind of promoting a lot of consumption, both automobiles, two wheelers, consumer durables. So आज की डेट में स्टूडेंट्स भी आईफोन लेके चल रहे हैं. अब चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? बिकॉज इट इज मोर अफोर्डेबल. आपको इजी EMI पॉलिसी देनी है. So that is what banking industry has done. So just read about these profitabilities. एक आध चीज पढ़ सकते हो कि ऑपरेटिंग टोटल प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ने शुरू हुए हैं. पहले अगर आप प्रॉफिट्स देखो तो बहुत कम होते थे, बट बिकॉज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स मार्च, इसकी वजह से आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में प्रॉफिट्स भी बढ़े. बट एनपीएस का भी प्रॉब्लम है साथ साथ. यू नीड प्रूडेंशियल नॉर्म्स बिकॉज इफ यू सी टिल 2000, पहले 2011 में बढ़े बहुत सारे एनपीएस, फिर 2015 से लेके 19 तक भी एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़े हैं. सो एनपीए का भी एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रॉस एनपीए जो है वो 15-16% से 2% हो गया, बट ये इंक्रीज होके ये वापस इंक्रीज होके अराउंड 11-12% हो गया था इन 2016-2017. अब ये वापस कम हो गया है, 8-9% के अराउंड पहुंच गया है. और इसी के लिए हमें प्रूडेंशियल नॉर्म्स चाहिए, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर अब हम ये जो टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल लेके आते हैं, बेसल नॉर्म्स, बेसल 3 नॉर्म्स हैं, वो इसी चीजों के लिए कि बैंक्स आर फोर्स्ड टू फॉलो सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर बोरोइंग, द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर लेंडिंग एंड हु दे आर लेंडिंग टू. Tier 1 capital, Chavi, this is more of a money and banking question. I don't want to diverge. Maybe in your class mein I will tell you about this Tier 1 capital plus tier. This is more of money and banking. This is called as credit adequacy ratio. Just to give you a small summary, क्या होता है? Suppose मेरे पास रिस्क, अगर एक तो होता है एसेट, एक तो होता है एसेट. सपोज आपने सिद्धार्थ को 100 रुपए दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपए दिए और विजय माल्या को 100 रुपए दिए. ये तो वो एसेट. अगर बैंक में हूं तो मेरे पास 300 रुपए का ये एसेट पड़ा हुआ है. बट रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है? अब सिद्धार्थ के साथ मेरे साथ भी कोई रिस्क है. सपोज मैं 0.3% प्रोबेबिलिटी से 30% प्रोबेबिलिटी से पैसा नहीं दूंगा, देन फिर उस से आई से दैट देयर इज ओनली 60% चांस कि मैं पैसा दूंगा. ठीक है, दैट मीन्स 40% चांस कि मैं पैसा नहीं दूंगा. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये जीरो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा अपना पैसा देती है. विजय माल्या के केस में ये कहता है कि बॉस मैं सिर्फ 20% चांस है कि पैसा दूंगा, 80% में डिफॉल्ट कर दूंगा. तो दैट मीन्स रिस्क वेटेड एसेट कितना हुआ? 60 रुपीज ही हुआ. ये 0 हो गया और ये 20 रुपीज हो गया. तो आपके रिस्क वेटेड जो एसेट्स हैं वो एक्चुअली में आपके एसेट जो आप 300 रुपए के दिखा रहे हो वो एक्चुअली में सिर्फ 80 रुपए. तो इसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट. जब आप एसेट के साथ में रिस्क लगा देते हो, रिस्क का जो वो है वो मल्टीप्लाई करते हो. अब अगर आपके पास 80 रुपए का रिस्क, अगर मान लो ये 80 की बजाय मान लो ये 100 रुपए था, तो अगर आपके पास 100 रुपए के रिस्क वेटेड एसेट्स हैं तो क्रेडिट एडिक्वेसी रेशियो विच वाज गिवन बाय बेसल 2 नॉर्म्स वो कहता है कि इसमें से बैंक का खुद का पैसा कितना होना चाहिए? टीयर 1 कैपिटल. दिस इज बैंक्स ओन कैपिटल, या तो प्रमोटर का कैपिटल या फिर उसके पास जो खुद के अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो सारी जो होता है टीयर 1 कैपिटल. और
टीयर 2 कैपिटल जो आपने रेज की हुई है इधर उधर से, सबऑर्डिनेट कैपिटल डेट से आपने रेस करा हुआ है, बाकी सोर्सेज से रेस किया, वो टीयर 2 कैपिटल है। ऐसे ही टीयर 3 कैपिटल भी होती है और सबऑर्डिनेटेड डेट हो जाता है। तो ये बेसिकली रेशो बताती है कि अगर आपके पास 100 रुपए का अगर आपको रिस्क वेटेड एसेट है, तो हमारे जो बेसल नॉर्म है वो कहता है कि इसमें से 8 रुपए जो होने चाहिए वो खुद के बैंक के होने चाहिए। इट शुड हैव अ स्किन इन द एंटायर गेम। इफ इट डज नॉट हैव दिस स्किन इन द गेम, तो मैं 100 रुपए ले रहा हूँ और आगे 100 रुपए दे रहा हूँ, अगर कोई नहीं वापस कर रहा तो नहीं वापस कर रहा। जब तक मेरा पैसा खुद का इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि मैं ठीक तरीके से लोन आगे दूं, क्योंकि मेरा पैसा भी फंस जाएगा। सिर्फ जिसने मुझे पैसा बोरो करके दिया है, जिसने मुझे लेंड किया है, सिर्फ उसका पैसा नहीं है, मेरा पैसा भी इन्वॉल्व है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड टीयर 1 कैपिटल, एंड विद इन दिस बेसल 3 नॉर्म्स ने और डीप चला गया। विद इन दिस इट सेड दैट कुछ इतना अमाउंट टीयर 1 से होना चाहिए और इतना अमाउंट टीयर 2 से होना चाहिए, क्योंकि बेसल 2 का जो फेलियर था ये था कि टीयर 2 से बहुत सारे बैंक्स बोरो कर बहुत सारे ले रहे थे, टीयर 1 के साथ उन्होंने अपना ड्रॉप कर दिया था। So this was all about these particular norms. Then, so what you are seeing is in this particular diagram is that धीरे धीरे आपके ग्रॉस एनपीएस, ये देखो ग्रॉस एनपीएस आपके 2007-2008 में गिर गए, फिर उसके बाद इंक्रीज होते हुए गए और ये 11% तक पहुंच गए 2015-16 तक, फिर उसके बाद ये वापस गिरने शुरू हो गए। आज की डेट के अंदर अब नॉट चेक दी रेशो 2021-22 का ऐसे 8-9% के अराउंड है। तो वो इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ है ऑफ योर ग्रॉस एनपीएस। और क्रेडिट एडिक्वेसी रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कितना ऑन एन एवरेज आपका क्रेडिट एडिक्वेसी रेशियो। देन ये तो हो गया हमारी बात बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ तक हमने सिर्फ 1990s के बाद बैंकिंग के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के अंदर उससे 1990 से पहले बहुत ही आर्कियाक इंडस्ट्री होती थी, बट 1990s के बाद बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए मनी मार्केट के अंदर, डेप्थ आया, डाइवर्सिटी आई, एंड उससे पहले जो था एज आई टोल्ड यू वाज वेरी आर्कियाक, and there was a ceiling on overnight interbank rate which is also called as call money market. Now what has happened is कि RBI के पास एक policy rate आ गया which is effectively the repo rate now, which acts as an anchor for money market through operations of liquidity adjustment facility. Now you know what this liquidity adjustment facility is, repo rate and reverse repo rate, and how with this policy rate as repo rate कैसे अब मार्केट के अंदर वो रेट्स चेंज होते हैं। नाउ अब उसके अलावा और भी नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जैसे CBLO आ गया, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस टाइप, वो आ गए। जस्ट रीड अबाउट इट, आपको मिल जाएगा नीचे इसका पूरा डेफिनेशन। देन ये रहा आपका ट्राइपैट्रेट रेपो रेट बिटवीन टू फाइनेंशियल एंटिटीज अलोंग विद CCIL. So this is how this market has emerged. Apart from that, new avenues have been raised by non-bank. तो ये तो बैंक्स के लिए हुआ। बैंक्स के लिए आपके पास आ गया दिस न्यू कॉल मार्केट, और कॉल मार्केट के अंदर और भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, CBLO जैसे और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब एक वेरिएबल रेपो रेट करके भी कुछ होता है, जो कोविड टाइम्स के अंदर आया था, वेरिएबल रेपो रेट लेंडिंग ऑपरेशंस करके कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है। तो बेसिकली अब जो है आपकी जो बैंकिंग मार्केट है उसके अंदर तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और डेप्थ भी आ गई। बट व्हाट अबाउट नॉन बैंक्स? नॉन बैंक्स के लिए अभी भी प्रॉब्लम रहता है, एंड यहाँ पर जो मेजरली मिसमैच होता है उसके लिए आपके पास कमर्शियल पेपर होता है और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होता है, जिनको हम कई बार बोलते हैं बिल्स ऑफ ट्रेड। तो इन सब के लिए जो है, और कमर्शियल पेपर जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉर्पोरेट बोरो कर रहा है, वो बैंक से बोरो नहीं करना चाहता, तो ये जो कमर्शियल पेपर की जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इंडिया के अंदर। सो दिस इज अबाउट व्हाट ऑल आर द इश्यूज। जो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी 70% बैंक्स के आपके पूरे बैंकिंग सेक्टर के एसेट्स को होल्ड करता है, एंड डिस्पाइट द शेयर ऑफ ह्यूज शेयर, उसका जो शेयर इन प्रॉफिट्स है वो सिर्फ 42% है। दैट मीन्स 70% एसेट्स रखता है बट 42% प्रॉफिट है। दैट मीन्स वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये इनएफिशिएंसी है। और इनएफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि ये सरकारी बैंक्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक बैंक्स हैं। अब इनके अंदर जाना भी मुश्किल है। पहले आपको ये एक माशाल्लाह सा एग्जाम है IBPS। ठीक है, अब while I was preparing for civil services I gave IBPS 1 2011 के अंदर।
अब लक अच्छा था कि चलो वो नहीं हुआ, बट इसमें अंदर आई स्कोर्ड रियली वेल। तो एग्जाम टफ है इसका, ऐसा नहीं है कि एग्जाम इजी है। और सिमिलरली एसबीआई का अपना एक बैंकिंग का एग्जाम होता है, तो एग्जामिनेशन का प्रोसेस। बट जितना मुश्किल इन बैंकिंग सेक्टर में एग्जामिनेशन नहीं है, उतना मुश्किल रिजाइन करना है। मतलब चलो 4 महीने लगे एग्जाम का पूरे प्रोसेस में और जाने में, बट 6 महीने लगे रिजाइन करने में। तो इनका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा वो है। ठीक है, अब वो देख लो कि आप रेजिग्नेशन दे दोगे बट गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब शाह फैसल, अगर किसी ने नाम सुना हो, 2010 का टॉपर था, उसने 2 साल पहले रिजाइन दिया था और आज तक गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और आज वो अब वो कहता है कि चलो ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है आपको। तो ये ऐसी सर्विस ब्यूरोक्रेसी इंडिया में ऐसी है कि आप रिजाइन करके छोड़ दो, आपको 3-4 साल बाद पता चलेगा अच्छा अभी तक तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। तो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके अंदर अभी भी है। इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। वो कैसे होती है कि विजय माल्या को लोन कैसे मिल गया? ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो एमपी भी रहा है या राज्यसभा से एमपी भी रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फोन आ गया कि भाई इसको बंदे को लोन दे दो, कोई बैंक को सरकारी बैंक मना कर ही नहीं सकता। So because of that there are issues, but at the same point of time there are societal concerns, because private sector banks वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा किसको देना है कैसे देना है, वो अपनी exploitative tactics और predatory tactics अपनाएंगे, जैसे जो मैंने आपको बाइजूस का आज एग्जांपल बता रहा था। So but that is something that probably SBI would never, I think in the wildest of dreams would do. So you have these efficiency dilemmas of efficiency versus equity, जहां पर these particular public sector banks are much more equitous. But at the same point of time when you talk about deterioration of assets, तो अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक को खूब लोग चूना लगाते हैं, ठीक है, उनका पैसा वापस नहीं करते। तो विच शोज कि जो एनपीए का प्रॉब्लम है इट इज मच मोर स्टार्क विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पीपल टेक देम लाइटली एंड डोंट पे बैक द मनी। तो इसी चीज चक्कर के अंदर इनके पास जो एनपीए है और जो वो है वो काफी ज्यादा रहता है। फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन you have these postal saving banks, rural and urban cooperative banks, regional rural banks, nationalization of banks। तो ये सारे अपनी चीजें करी। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यू हैव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है कि हर बैंक के पास अगर 100 रुपए डिपॉजिट आया है तो उसमें से 40 रुपए जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा, पीएसएल को जाएगा। इस 40 रुपए में से 18 रुपए जो है वो एग्रीकल्चर को जाएगा, 10 रुपए जो है वो एग्जिम को जाएगा, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए जाएगा, बाकी कुछ पैसा इधर उधर चला जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब इस सेक्टर को तो आपको लेंड करना ही है। एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल्स, दीज आर ऑल प्रायोरिटी सेक्टर। और इंडियन बैंक्स आर सपोज टू लेंड 40% ऑफ देयर क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये मैंने आपको बताया ना, ये इनके अंदर फर्दर सब डिविजन्स हैं। Then you have other new financial inclusion के लिए you have this किसान क्रेडिट कार्ड, जो आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। Then you have banking correspondent, you have no frills account, and now you have this Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So all of these are initiatives for financial inclusion from the side of banks. Then you have these Bandhan banks and IDFC banks, and now you have these पेमेंट बैंक्स जो से उनका काम सिर्फ पेमेंट का, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो स्मॉल क्रेडिट दे सकते हैं। सो दीज आर न्यू मॉडर्न बैंक्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन द इंडस्ट्री। जस्ट रीड थ्रू ऑल ऑफ दिस इज जस्ट डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। नाउ कमिंग टू द इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई पिछले कुछ टाइम के अंदर, एंड लेट्स फिनिश इंश्योरेंस सेक्टर। सो let's come to insurance sector. Now insurance sector as you know कि उससे पहले 1990 से पहले ये जो था ये completely monopolized था by government. You had this one life insurance which was LIC and 4 general insurance companies. ठीक है, for example you might have heard about this Oriental, ठीक है, and then और भी कुछ GIC करके थी और 2 और थी। So अब ये आर एन मल्होत्रा कमेटी आई 1993 में और उसने इंश्योरेंस सेक्टर को क्या कहते हैं लिबरलाइज किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकारी भी है, तो जहां पर सरकार भी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगा वहां रेगुलेटर चाहिए। तो जैसे ट्राई इज अ रेगुलेटर फॉर द टेलीकॉम, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आई
which was kind of this empire to set out the rules in the insurance sector. तो इसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया और जिसको काम था इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करना. नाउ अब ये जो मोनोपोली आई हुई थी क्या कहते हैं LIC और GIC को, ये हटानी थी. अब उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करा, इंश्योरेंस सेक्टर को अगर आपको खोलना है तो उन्होंने ये करना शुरू किया, इसके अंदर FDI लाना शुरू किया. दैट इज वाई यू हियर दिस कंपनीज कॉल्ड टाटा AIG. तो जब टाटा AIG सुनते हो तो AIG इज द फॉरेन पार्टनर एंड टाटा इज द इंडियन पार्टनर, या ICICI लोम्बार्ड. सो हेयर यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स. तो यहाँ पर आपने क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को खोला और इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर और प्लेयर्स लेके आए. And now the extent is कि you have 24 life insurance companies and you have 28 general insurance companies, but इसमें से भी सबसे बड़ा जो कंपनी है वो आपकी LIC ही है, ठीक है. एंड देन जो री इंश्योरर है उसमें GIC ही अभी तक है. बट द प्रॉब्लम हेयर इज दैट इंडिया के अंदर जो प्रीमियम्स अर्न है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका पेनिट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं. सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कवर. तो बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी इंक्लूड करना शुरू किया है. फॉर एग्जांपल अब आपके बैंक अकाउंट से आई थिंक 12 रुपए किसी चीज के लिए कटते हैं और कुछ 200 रुपीज किसी चीज के लिए कटते हैं, जिसमें एक जीवन ज्योति बीमा योजना है जो सरकार की तरफ से है और आप सब उसका पार्ट हो बाय द वे. एंड एक और कोई जीवन कुछ प्रोग्राम है. सो बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली अगेन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म में आपकी ये आई हुई हैं. और यहाँ पर पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है. अब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इज मेजर्ड बाय रेशियो ऑफ प्रीमियम टू GDP, कि कितना प्रीमियम देश में जनरेट हो रहा है इंश्योरेंस का और GDP कितना है, और उसका जो रेशियो है वो बीच में इंक्रीज हुआ फिर वापस डिक्लाइन हो गया. सो which basically shows कि इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली कंट्री लाइक कोरिया जिसका 12% के अराउंड है. नाउ अगेन इसके अंदर मेजर रोल अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का ही है. there is another parameter which is called as insurance density, which is insurance ratio of insurance premium to population which is per capita premium कितना है, वो भी हमारा बहुत पुअर है, ठीक है. सो दिस इज अ की इशू वहां जहां पर हमें एक्सपेंशन चाहिए ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. यहीं पे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा था. मैंने अपनी क्लास को भी बोला एंड आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू अगेन that these are two things that you should definitely buy. एक term insurance और दूसरा एक health insurance. Your premiums will be extremely low if you start right now. बाद में जाके premiums बहुत high हो जाएंगे. Then and I'm suffering because of that. That's why I'm telling you. So apart from that you need insurance की अगर एक तो protection, social protection मिलेगी. Apart from that अब insurance companies अगर ज़्यादा होंगी, ज़्यादा लोग insured होंगे तो उनके पास corpus ज़्यादा होगा, और अगर उनके पास कॉर्पस ज्यादा होगा तो इंश्योरेंस फंड्स आर एसेंशियल फॉर कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट डेट मार्केट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही चलती है. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस फंड्स आर द मेजर फंड प्रोवाइडर्स टू कॉर्पोरेट डेट मार्केट. बेसिकली कॉर्पोरेट, क्योंकि आप सपोज LIC है या कोई एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पास 50,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है. अब वो कहाँ करेगी? 50,000 करोड़ की FD थोड़ा ना बनाएगी, तो वो अलग अलग सोर्सेज में एलोकेट करेगी. हो सकता है कि वो 50,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ कह दे कि अच्छा ठीक है मैं कॉर्पोरेट डेट में खरीद लेती हूँ, इस कंपनी का खरीद लेता हूँ, इस कंपनी का खरीद लेता हूँ, इस कंपनी का. तो क्योंकि इनके पास फंड ज्यादा होते हैं इसीलिए इनके पास इनका जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज देन दे कैन एक्सपैंड, दे कैन स्पेंड दिस मनी ऑन अदर कॉर्पोरेट डेट मार्केट के. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस में मिस सेलिंग बहुत होती है, ठीक है. मिस सेलिंग की आपको कुछ बोला और कुछ मिला, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस की. इसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू फॉलो दिस कंपनी कॉल्ड डिटो विच कंप्लीटली डील्स विद इंश्योरेंस. दिस इज अ वंडरफुल कंपनी, फिनशॉर्ट्स वालों के साथ ही एसोसिएटेड है. सो आई हैव बीन फॉलोइंग देम फॉर क्वाइट सम टाइम. दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब. आई थिंक एक्वेंटेंस विद दिस वन ऑफ द को-फाउंडर्स इज फ्रॉम IMA. तो बट दे आर डूइंग रियली गुड जॉब. सो ट्राई टू सी दिस. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं. अब कैपिटल मार्केट्स के अंदर
यू हैव इज द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बैंक बेस्ड और मार्केट बेस्ड? तो हमारा मेजरली तो बैंक बेस्ड ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट्स के पास जो सोर्सेज यूजुअली रहते हैं वो नॉन बैंक्स का जो सोर्स है वो 40-50% नॉन बैंक्स के थ्रू है, ठीक है। एंड अब वो सोर्सेज कहाँ कहाँ से उठाते हैं, वो अलग अलग सोर्सेज से पैसा उठा सकते हैं, फॉरेन सोर्सेज हो गए, डोमेस्टिक सोर्सेज हो गए, ठीक है। सो ये आपके पास सोर्सेज हैं। एक पहले सबसे पहले मार्केट देखते हैं आपके पास डेट की। अगर हम इसी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बात कर रहे हैं तो हम बॉन्ड वर्सेस डेट मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या है कि आपकी ओनरशिप के ऊपर है, ठीक है, कि बॉन्ड खरीद रहे हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर बॉन्ड मार्केट जो है वो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड मार्केट है वो तो काफी बड़ा है, बट कॉर्पोरेट का जो डेट मार्केट है वो बहुत ही छोटा मार्केट है एंड इज कंसंट्रेटेड विद ओनली ब्लू चिप कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए। एंड यहाँ पर मेजरली प्राइवेट प्लेसमेंट होता है विद लिमिटेड लिक्विडिटी। दैट मीन्स प्राइवेटली लोग लोन खरीद लेते हैं या लोन वो कर लेते हैं, मार्केट डेवलप नहीं होने देते, कि जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स जो है जैसे शेयर की तरह डिमांड एंड सप्लाई की तरह चल रहा है उस तरीके से नहीं होता, प्राइवेटली आप लोन ले रहे हो इन दी मार्केट। सो ये जो है एक काफी ज्यादा बड़ा रीजन है कि आपका जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है वो स्ट्रांग नहीं है। और लार्ज कॉर्पोरेट जो जनरली अगर उनको पैसा चाहिए तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इंडिया से बाहर से बोरो करते हैं रादर देन। और जो दूसरी इशू है कि जो पेंशन, जो मैं आपको बता रहा था, पेंशन और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है वो बहुत छोटी है इंडिया में, और क्योंकि वो छोटी है इसलिए वो इस मार्केट में अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रही। सो द साइज ऑफ द मार्केट इज जस्ट 15% ऑफ जीडीपी, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू से अदर्स बैंक्स या इक्विटी मार्केट विच इज 80% ऑफ द जीडीपी। इक्विटी मार्केट जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, और 1990s के बाद स्पेशली 2000 के बाद तो हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, डीमेटलाइजेशन करा है और उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग हमने काफ़ी वो करी है, कुछ स्कैम्स के बाद हमने रेगुलेशंस अच्छे से करी हैं। सो देर हैज़ बीन नंबर ऑफ रिफॉर्म्स क्या कहते हैं फॉर ग्रोथ इनेबलिंग, फॉर रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जैसे आज की डेट में अगर आपको इक्विटी मार्केट में करना है तो आपको, आप ये ट्रेडिशनल तरीका छोड़ो, आपके पास ग्रो जैसी एप्स हैं, आपके पास जीरोधा जैसी एप्स हैं। जैसे अगर फॉरेन में अगर आपने सुना हो रॉबिन हुड करके ऐप है जो जीरो कोई कमीशन ही नहीं लेती है। सो दीज आर न्यू एज मेथड्स टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट, और उसकी वजह से इक्विटी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ आई है। And it has truly been driven by two institutions. One is SEBI and the other is National Stock Exchange, ठीक है। These are the two major institutions, और उनके साथ में एस्टैब्लिशमेंट के लिए दो डिपॉजिटरीज बनी है, एक आपकी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये जो है ये इन्होंने एनेबल करा है पेपरलेस ट्रेडिंग, जो आप देखते हो डीमैट अकाउंट वाली। इन्होंने डेरिवेटिव्स के अंदर इन्वेस्ट, फ्यूचर्स के अंदर, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं डेवलप करने के लिए, बेसिकली पेपरलेसली डेवलप करने के लिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा रोल है। देन लास्टली लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसके अंदर अगर आप देखो तो पहले आपका मोनोपोली था म्यूचुअल फंड्स के अंदर यूटीआई का, यूनाइटेड ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड था, बट उसके बाद उसके अंदर यूटीआई के अंदर एक क्राइसिस आया, स्कैम आया, और उसके बाद क्या कहते हैं ये यूटीआई के बजाय उसको एक तो ब्रेकअप करा, यूटीआई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव नाउ न्यू म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स विच हैव कम अप इन द कंट्री, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंशन बढ़ा, एंड उनकी वजह से अगेन इक्विटी मार्केट के अंदर जो